and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Let's compete. Today, I will discuss government e-marketplace GEM. It is part one and it is updated one. It is 2026, updated 2026 already I have written. In this part, I will discuss very important things. With example, I will discuss online bidding, reverse auction. Uh, how can the government departments procure the goods through reverse auction tool, forward auction, push up button, and many important things I will discuss. Definitely, it would be useful for you for your forthcoming exam. So, in this part, I will discuss key principles of public procurement, key stakeholders of government e-marketplace, GEM, SPV, MSP, and PMU. Procurement on GEM, it is very important one. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. You see my WhatsApp number, it is 8327782034. If any queries there, you contact with me and clear your doubt. My two Telegram channels are there. One Telegram channel link t.me/BAPI2034 and second Telegram channel link t.me/ASIT2034. So if you join my Telegram channel, then you can get notification for my upcoming videos. So now I am going to start government e-marketplace GEM part 1. It is updated version. First one, you see the key principles of public procurement. Public procurement is guided by four major principles to ensure fairness and efficiency. Four major principles are there. You know that GEM, so all government departments and their subordinate offices, now they want to procure goods through GEM because quality is there, price is very fair one, reasonable one, competition is there, varieties of brands of goods available according to the specification, registered suppliers are there, and there is no involvement of any middleman for purchase, and also payment made through PFMS, Public Financial Management System, directly payment made to the supplier. So many advantages are there. So there is no wastage of public money. So now I am going to discuss four key principles. One is, first one, you see, economic efficiency and transparency. एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी के बात आएगा. एफिशिएंसी का बात जब आएगा, मैं ये बोलूंगा कि एफिशिएंसी रिलेटेड में फर्स्ट वन, क्वालिटी गुड्स अवेलेबल, वेराइटीज ऑफ क्वालिटी गुड्स अवेलेबल. इट मीन्स ऑन GEM portal. Registered suppliers are there. Reasonable price according to the specification. The government departments or government offices, they can procure goods, and systematic competition is there, and in also bidding process, very systematic one, submitting bidding documents, evaluation of technical bid, financial bid, and contracting award. So there is no any manual procedure, everything can be done only through the online, and it is very systematic one. So efficiency is there, directly money transfer to the seller through the PFMS, Public Financial Management System. It shows also transparency. Okay, so efficiency and ट्रांसपेरेंसी का बात जब आएगा, एफिशिएंसी रिलेटेड में फर्स्ट कंपटीशन का बात देखो. वेराइटीज ऑफ ब्रांड्स ऑफ गुड्स अवेलेबल ऑन GEM पोर्टल. ठीक है, so much competition is there. And through bidding also, you know that through reverse auction tool, I will discuss also, the government offices, they can procure goods at very reasonable price.
And direct purchase also up to 50,000, directly the government departments they can purchase. If the government offices they want to purchase small quantity of goods, so they can directly purchase the goods. There is no involvement of intermediaries, any middleman. Directly money transfer from the buyer to the seller. Catalog is there, product catalog is there, so standardized products available on the GeM portal. Like, so similarly related to the transparency online process, uh, bidding process through online, submitting documents, and there is no need of advertisement in newspapers, everything, and any physical documents, so there is no need. So online process is very fair, and online process is very authentic one. Okay, open competition is there, and audit also. CAG, controller and auditor general, uh, GeM portal, buying and selling, it means everything audit by the CAG, controller and auditor general, and clear rules are there. When you go for bidding, then clear rules are there, very transparent rules are there. Okay, so is the first principle. Second one, you see, equal treatment of suppliers. Equal treatment of suppliers, there is no discrimination here. Some large suppliers, micro, small and medium, micro, small and medium enterprises are there, right? Startup, now startup companies are there, small service providers, local manufacturers, and all these suppliers actually registered by the GeM SPV. GeM, a special purpose vehicle, one of the autonomous body owned by the government, and this GeM SPV manage everything. I will discuss also. So equal treatment to suppliers, there is no discrimination and there is no disparity among the suppliers. Registered suppliers, very open manner, they can compete. Okay, and they want to provide quality goods, okay, to the government departments, or to the different offices of the government, or to the public sector undertakings, to the public sector enterprises. Right. Third principle is promotion of competition, encourages better pricing and quality through open bidding. So competition, it is an open marketplace, it is an open marketplace, and many registered suppliers are there. Okay, many, it means a particular product, many brands. Okay, and reasonable price, there is a stiff competition among the uh, registered suppliers. So bidding actually very competitive bidding is there. When I will discuss online bidding and reverse auction, forward auction, at that time you can detect what type of competitive bidding or stiff bidding is there. Multiple options for buyers. Promote company, multiple options for buyers. Many options. You choose according to your, it means according to the specification of the buyer, according to the requirement of the buyer, goods are available. Okay. So this competition also, MEs, micro, small, medium enterprises, startup, small service providers, local manufacturers, and similarly big sellers. So all are available on the GeM platform, and competition is very steep one. Okay, so it's the promote of competition. Next one, inclusivity. Fourth principle, inclusivity means what? Inclusivity means, at the same time large sellers are there, at the same time micro, small, medium enterprises, new startup companies, local manufacturers, small service providers, all are getting opportunity. All are registered by the GeM SPV. GeM SPV check the credential of the suppliers, their past status, their financial stability, okay, their delivery status. So GeM SPV actually allow the suppliers to register on the GeM portal. So all are getting opportunity. Okay, so don't think that only big sellers actually they can sell their products on the GeM portal. No, many small
suppliers like micro companies, small companies, medium companies, now startup companies, right? Some small service providers, local manufacturers, all one getting opportunity. So it is inclusivity. So 4 key principles first you remember. Okay, if descriptive question is coming, easily you can attempt it. Then we can go to the next part. You see the genesis, the government e-marketplace set up in 2016. This year you remember. Also MCQ question you can get. First one stop online procurement portal for all central state ministries, departments, bodies and PSUs. One stop online procurement, registration of suppliers up to payment. One chain is there. Rules are very fair one, right? Rules and regulations are very fair one. Okay, catalog is there, product catalog. Okay, varieties of goods available on the GeM platform. Price is very reasonable. Steep competition is there. Okay, procurement process is very transparent. Okay, very fair, very authentic. रूल 149 यू नो GFR जनरल फाइनेंशियल रूल को आप जाएंगे, रूल 149 देखिए, वहां पर क्लियरली जेम के ऊपर है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम जेम फॉर ऑल द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स. ओके, जो रूल 149 बेसिकली जेम रिलेटेड है, ये रूल को याद रखिए, ठीक है. So it is clearly given mandated the procurement of goods and services from GeM for all the central ministries and departments. Next one, multiple tools for public procurement. If you want to purchase, many tools are there. Direct purchase. L1 means actually quotations, 3 quotations. So I will discuss everything in subsequent time. Bid auction, reverse auction, forward auction, etc. So these are the different ways actually. These are the different methods to procure, okay, goods and avail services, okay, from the GeM portal. Okay, one direct purchase is there, L1 process, and bid or reverse auction, forward auction, etc. I will discuss in subsequent time. Commitment to 3 pillars: efficiency, transparency, inclusiveness in public procurement. So 3 pillars, just you remember. Now already I have discussed the key principles. Okay, so these things you try to remember, and it is very helpful for you in descriptive examination. Next one, you see the GeM pillars. 3 GeM pillars. One is the inclusivity, transparency, efficiency. So inclusivity already I told. At the same time, large sellers are there. Same time, micro, small, medium enterprises are there. At the same time, also new startup companies are there. At the same time, small service providers are there. At the same time, local manufacturers are there. So there is diverse actually enterprises, companies. Okay, they are on the GeM platform. So inclusivity means actually simply actually encouraging participation. So always GeM SPV, GeM special purpose vehicle, always actually encourage the companies, okay, to register on the GeM portal and selling quality goods, okay, to the buyers, basically government departments, government offices, offices of PSU, offices of autonomous bodies, okay, at reasonable price. It is inclusivity. Second one, you see transparency. It's a very transparent one, you know. Online processes, online bidding process is very transparent one. I will discuss in subsequent time. आप देख लीजिए, आप बिडिंग प्रोसेस में जाइए, ऑनलाइन बिडिंग की, रिवर्स ऑक्शन की, फॉरवर्ड ऑक्शन, पुश अप बटन, डायरेक्ट परचेज, okay. So everywhere transparency is there. There is no involvement of middleman. Directly payment made from the buyer to the seller through PFMS, Public Financial Management System. Direct, it means benefit transfer, DBT. And online process is very, it means authentic and fair one. Okay, many brands of goods available. There is no possibility of price rigging. Okay, there is no possibility of manipulation. Because managed service providers are there.
So MSP, managed service providers, like TCS. Okay, some software companies are there, they manufacture actually basically the JAM portal, so that there is no price rigging, there is no manipulation, nothing would be happened. So it shows the transparency. नेक्स्ट वन एफिशिएंसी. जब एफिशिएंसी का बात आएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, क्वालिटी. ओके, वेराइटीज ऑफ क्वालिटी गुड्स अवेलेबल. देन बात आएगा एफिशिएंसी, रीजनेबल प्राइस. देन एफिशिएंसी के बात आएगा कंपटीशन. देन एफिशिएंसी के बात आएगा तो फेयरनेस इन केस ऑफ ऑनलाइन बिडिंग की रिवर्स ऑक्शन टूल की फॉरवर्ड ऑक्शन. ओके, so there is no waste. We do not expect that there is wastage of public money, and also very process is very faster one, and also bulky quantity of goods actually we can get. Okay, so it shows efficiency. These are the JAM pillars, 3 pillars, right? नेक्स्ट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. की स्टेक होल्डर्स को चलेंगे. की स्टेक होल्डर्स ऑफ जेम, इंटरनल में जाएंगे. इंटरनल स्टेक होल्डर्स, जेम एसपी भी है, जेम स्पेशल पर्पज व्हीकल, उसके ऊपर मैं बताऊंगा आगे में. जेम एसपी भी एक्चुअली ऑटोनोमस स्टाटस एक्चुअली गॉट बाय दिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, and JAM SPV actually manage the JAM portal, organize the JAM portal, and it means register the companies on the JAM portal, check the credentials of the suppliers, check their financial status, financial stability, check their past status, check their delivery status, check their license, check their manufacturing status. Okay, so everything. So JAM SPV also encouraging more and more startup companies, micro, small, medium enterprises, small service providers, local manufacturers to register them on the JAM portal and providing quality goods. Clear? MSP, managed service, it means provider, it is not partner, managed service provider. So जो MSP है, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज, सपोज आप एग्जांपल लीजिए जैसे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस. MSP का बात जो है वो बेसिकली पूरा जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क है उसको पूरा मैनेज करता है जेम पोर्टल का. जैसे कोई प्राइस रिगिंग नहीं होगा, चाहे कोई न्यू थिंग इंट्रोड्यूस होगा, कैसे वेरी स्मूथली बेसिकली बायर्स दे कैन प्रोक्योर गुड्स, और वेरी स्मूथली bidding process actually would be conducted. So MSP managed service providers are there. Next one, project management unit. Project management unit, some consultancy का बात आएगा. Project management unit, some consultancy firms are there, they are monitoring. Okay, they every time they are alert, they check whether it means the managed service provider properly providing service or not, so that any time the system should not be hang on, and the system should be smoothly functioning. Any glitches are there, immediately it must be sorted out. So like this project management unit. So 3 internal stakeholders, JMSP भी, और जो भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैनेज सर्विस प्रोवाइडर है, वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क, कोई न्यू चीज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे वो जेम पोर्टल स्मूथली फंक्शन करेगा. और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है, एक कंसल्टेंसी फार्म, वो भी मॉनिटर करते हैं डिफरेंट एरिया को. ठीक है. बायर्स सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल PSUs, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट PSUs, ऑटोनोमस बॉडीज, दीज आर द बायर्स. सेलर्स का बात आएगा. सेलर्स में OEMs एक्चुअली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस MSC, स्टार्टअप कंपनीज, authorized resellers, service providers, these are the different sellers available on the JAM portal. एक्सटर्नल गवर्नमेंट सिस्टम्स में UIDAI, जो आधार रिलेटेड जो है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, आधार सिस्टम है, UIDAI, GSTN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS, राइट. और MCA 21, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21st century.
ओके, क्या MCA 21 का क्या रोल है? जेम जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लिवरेजेस द MCA 21 डाटाबेस, एक पोर्टल है MCA 21 डाटा टू ऑटोमेटिकली वेरीफाई द क्रीडेंशियल्स ऑफ कंपनीज। जो MCA 21 है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, वो फर्स्ट वन कंपनीज का क्रीडेंशियल्स को चेक करेगा। ओके, वो इंश्योर करेगा ओनली लीगली कंप्लिएंट एंटिटीज ओके कैन सेल टू द गवर्नमेंट। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो 21st सेंचुरी उसका काम है, वो बेसिकली डाटाबेस जो है कंपनीज का डाटाबेस को चेक करेगा, उनका क्रीडेंशियल्स को चेक करेगा और इंश्योर करेगा कि जो भी कंपनीज जेम पोर्टल के ऊपर है वो बेसिकली लीगली कंप्लिएंट एंटिटीज, वो रूल रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ठीक है, एंड सेल देयर गुड्स टू द गवर्नमेंट। एंड पैन डाटाबेस, जो परमानेंट अकाउंट नंबर डाटाबेस, ये सब एक्सटर्नल गवर्नमेंट सिस्टम्स में आ जाता है। इंस्पेक्शन ऑडिट का बात आएगा, CAG है, आप याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इंस्पेक्शन टीम में CAG है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो ऑडिट जो होता है जेम पोर्टल का ऑडिट को पूरा चेक करेंगे, ठीक है, CAG चेक करेगा, ठीक है। और CGDA नेक्स्ट वन, ये डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ओके, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, यू नो द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर CGDA। डिफेंस डिपार्टमेंट में CGDA जो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स है, वही प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है, वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगा और वो ऑडिट ठीक से एक्सपेंडिचर हो रहा है कि नहीं वो चेक करेगा, ऑडिट करेगा। तो ये CGDA का काम है डिफेंस डिपार्टमेंट में। और राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब इंस्पेक्शन सिस्टम में आ जाता है। पार्टनर्स बैंक्स है और सम रेटिंग कंपनीज आर देयर। रेटिंग कंपनी जैसे क्राइसिल है, इंडिया रेटिंग्स है, ब्रिकवर्क है। तो जो वेंडर्स है जेम पोर्टल में, जो कंपनीज है, उनको वो वेरीफाइंग करते हैं क्रीडेंशियल्स को, उनका क्रीडेंशियल्स को चेक करते हैं, ओके, उनका क्या डिलीवरी स्टेटस है और बाकी उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा है, ठीक है, वो किस तरीके का गुड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये सब चेक करके वो एक रेटिंग देते हैं, ठीक है, रेटिंग एजेंसीज में एग्जांपल बताया, क्राइसिल है, इंडिया रेटिंग से, ब्रिकवर्क है, जिसको वेंडर्स को वो असेस करते हैं, उनको उनका क्रीडेंशियल्स को चेक करते हैं, ठीक है। और अदर कमर्शियल एजेंसीज, अदर कमर्शियल एजेंसीज में मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं इसमें। जैसे फर्स्ट वन है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो क्वालिटी को चेक करता है, जो जेम पोर्टल में जो भी गुड्स अवेलेबल है वो क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो बेसिकली टेक्निकल वेंडर असेसमेंट उनका स्पेसिफिकेशंस को चेक करता है, ठीक है। जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो बेसिकली उनका स्पेसिफिकेशंस को चेक करता है, उनका फीचर्स, स्पेसिफिकेशन मींस फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। और जो टेक्निकली वेंडर्स को वो असेस करता है, सेलर, इट मींस सेलर्स को। MSP सर्विस प्रोवाइडर्स है, मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, जो पूरा जेम पोर्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। और जैसे AI ड्राइवन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन टूल्स में वो डिटेक्ट करते हैं कि कोई भी जैसे प्राइस रिगिंग नहीं होगा, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा, ठीक है। और कमर्शियल बैंक से, जो जेम पुल अकाउंट में कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी आगे में हम डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द की स्टेक होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसके ऊपर भी MCQ आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, थोड़ा जेम SPV के ऊपर बोलेंगे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये एक्चुअली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको गवर्नमेंट ऑटोनोमस स्टेटस दिया है। एक्चुअली गवर्नमेंट जेम SPV को ओन किया है, गवर्नमेंट ओन्ड द जेम SPV, ठीक है। तो जेम SPV का क्या काम है? उसका काम है कि पूरा जेम पोर्टल को मैनेज करना, टू मैनेज द जेम पोर्टल, टू ऑर्गेनाइज द जेम पोर्टल, टू रजिस्टर द सप्लायर्स, encourage MSMEs, micro small medium enterprises, small service providers,
local manufacturers, okay, and register them. They check the credentials of the sellers. They check their financial stability. They check their delivery status. They check their past status, in what way actually they delivered goods, okay, to the buyers. Okay, so यहाँ पर दिया है JMSPB is a government owned company formed to develop, operate and maintain the JM portal. ओके, जेम पोर्टल को डेवलप करना, उसको ऑपरेट करना और प्रॉपरली मेंटेन करना, ठीक है। जैसे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, इज वेरी स्मूथली दे कैन प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द जेम पोर्टल, ठीक है। लीगल स्टेटस देखेंगे जेएमएसपीबी का। इट इज रजिस्टर्ड एज ए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल अंडर द कंपनीज एक्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कंपनीज एक्ट 2013। ओके, एक रजिस्टर्ड जेएमएसपीबी जो रजिस्टर्ड कंपनी, एंड मैं अभी बताया इसको गवर्नमेंट ऑटोनोमस स्टेटस दिया है, और अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में, ओके, इट इज रजिस्टर्ड, ओके, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये किसके अंडर में फंक्शन करता है, ये भी एक क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन हुआ है और फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, पर्पज, मेन पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एसपीवी, क्या गवर्नमेंट का मेन पर्पज क्या है, इसको जो पर्पज ऑफ क्रिएटिंग, जो स्पेशल पर्पज व्हीकल को क्यों क्रिएट किया गया, उसका मेन पर्पज क्या है। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द जेम पोर्टल। जेम पोर्टल को कैसे प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा, उसमें कैसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगा पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, और प्रोफेशनल एंड फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस लाइक ए कॉर्पोरेट एंटिटी, ठीक है। जो मेन एसपीवी जो स्पेशल पर्पज व्हीकल है, उसका मेन है एफिशिएंट मैनेजमेंट, कैसे प्रॉपरली मैनेज होगा जेम पोर्टल, ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन होगा, अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन होगा पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, और जो मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स है वो कैसे सिस्टम को डेवलप करेंगे सो दैट कोई भी ग्लिचेस नहीं आएगा, कोई भी प्राइस रिगिंग नहीं होगा, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम आएगा इमीडिएटली उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेरी स्मूथली, वेरी इजीली दे कैन प्रोक्योर गुड्स। ओके, की फंक्शंस देखेंगे ऑफ जेएमएसपीवी। मेन फंक्शंस ऑफ जेएमएसपीवी: मैनेज एंड मेंटेन द जेम डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑन बोर्ड बायर्स एंड सेलर्स। फर्स्ट वन, वो जेम पोर्टल को मैनेज करता है और मेंटेन करता है ऑन बोर्ड जो बायर्स एंड सेलर्स। सेलर्स को इट मीन्स अलाउ द सेलर्स टू रजिस्टर्ड ऑन द जेम पोर्टल, अलाउ द बायर्स टू रजिस्टर्ड ऑन द जेम पोर्टल, ensure secure and transparent procurement, develop new features and procurement tools like bid, reverse auction, etc., provide technical and operational support. okay, ये सब है की फंक्शंस ऑफ जेएमएसपीवी। इसके ऊपर थोड़ा मैं डिस्कस कर चुका हूं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये सब की फंक्शंस को आपको याद रखना है, कभी कभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। जेएमएसपीवी इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एमएसपी के ऊपर चलेंगे, मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर। मैं बताया था जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी जो जेम पोर्टल में ग्लिचेस आ सकता है, कुछ माल फंक्शन हो सकता है, कभी कभी क्या है हैंग हो जाता है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू प्रोक्योर द गुड्स एक्चुअली टाइमली। तो इसीलिए ये जो मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स है उनका काम है कि उसको उसका जो सॉफ्टवेयर कैसे अच्छे से डेवलप होगा, और कैसा कैसा न्यू टूल्स को ऐड किया जाएगा, कैसे वेबसाइट को अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है, उसको मेंटेन किया जाएगा। तो ये उनका काम है। ओके, जो एमएसपी मैनेज सर्विस प्रोवाइडर, दे हैंडल द कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, सर्वर मैनेजमेंट एंड द यूजर इंटरफेस। ओके, तो व्हेन द साइट गोज डाउन फॉर मेंटेनेंस और गेट्स ए न्यू फीचर, तो ये मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स वो पूरा मैनेज करते हैं। जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, जैसे कोई भी ग्लिचेस नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होगा, कैसे स्मूथली प्रोक्योरमेंट होगा, कैसे स्मूथली ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस को फंक्शन किया जाएगा, कैसे न्यू फीचर को ऐड किया जाएगा,
ठीक है, तो ये उनका काम है, मैनेज सर्विस प्रोवाइडर। ओके, बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनीज। नेक्स्ट वन आ जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। मैं भी इसको भी बताया था। कुछ एक्सपर्ट्स यहां पर देखिए, पीएमयू कॉन्सेप्ट स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स एंड एक्सपर्ट्स। इसमें स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स एंड एक्सपर्ट्स है जो हु ब्रिज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द टेक्नोलॉजी। उनका काम है सुपरवाइजिंग रोल। वो सुपरवाइज करेंगे कि सिस्टम ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, उनका काम वही है, मॉनिटरिंग। मेनली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, इसमें जो स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स एक्सपर्ट्स है, ईच एंड एवरी टाइम they are monitoring the system so that any type of glitches would not be arised, any type of problems would not be arised very smoothly. Basically the buyers, government offices, they can procure the goods through online bidding process, through reverse auction tool, through forward auction. Okay, so they manage day to day operations, monitor the MSPs। जो मैनेज सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी मॉनिटरिंग करेंगे। ओके, मॉनिटर द एमएसपीज परफॉर्मेंस, हैंडल हेल्प डेस्क एस्केलेशंस। कोई भी सपोज आप क्वेश्चन पूछते हो, जैसे कोई गवर्नमेंट बायर्स, उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, ओके, तो वो हेल्प डेस्क में जाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको सॉर्ट आउट करना, उसको जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे उसका आंसर देना। कंडक्ट ट्रेनिंग ऑल्सो, बायर्स एंड सेलर्स दोनों को ट्रेनिंग देना। तो ये मेन रोल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, बेसिकली जो स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स एंड एक्सपर्ट्स है। फोकस, दे इंश्योर दैट द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर करेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू टेक्निकल फीचर्स बाय द एमएसपी। तो ये तो मेनली मॉनिटरिंग वर्क है, जो स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट एंड एक्सपर्ट्स बेसिकली हायर्ड बाय द जेएमएसपी भी, राइट। अच्छा, प्रोक्योरमेंट को चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का पार्ट का। तो हम जो जेएम में प्रोक्योर करेंगे, क्या मॉनेटरी लिमिट है, तो आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो अप टू 50,000 कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर से। यदि आपका एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इट इज अप टू ₹50,000, डायरेक्टली यू कैन परचेज इट फ्रॉम एनी सेलर अवेलेबल ऑन द जेएम अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अमाउंट क्लियर, अप टू 50,000। ये फर्स्ट प्रोसेस था। L1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर अमाउंट अप टू ₹10 लाख। इसमें आ जाएगा जो L1 में अप टू ₹10 लाख आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या है, आपको एक पर्टिकुलर कमोडिटी खरीदना है, उसका 3 ब्रांड को कंपेयर करना है। कंपेयर 3 डिफरेंट ब्रांड्स और सर्विस प्रोवाइडर्स, जो 3 सेलर्स बेसिकली जो जिनका प्राइस रीजनेबल है, उनको कंपेयर करना है। कंपैरिजन आ जाएगा इसमें, और कितना, एटलीस्ट, ओके, कंपेयर एटलीस्ट 3 सेलर्स को कंपेयर करना है, एंड जिसका प्राइस लोएस्ट होगा उससे ही आपको उससे प्रोक्योर करना है। तो ये L1 प्रोसेस अप टू ₹। यदि आपका जो गवर्नमेंट बायर का, जो गवर्नमेंट ऑफिस का, सपोज वो प्रोक्योर करना चाहता है और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज अप टू 10 लाख, तो वो 3 ब्रांड्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को कंपेयर करेगा। यहां पर कंपैरिजन होगा, 3 सर्विस प्रोवाइडर्स का कंपेयर किया जाएगा, और जिसका लोएस्ट प्राइस होगा उसी से ही प्रोक्योर किया जाएगा। ये L1 प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें याद रखना है अमाउंट और कितना, कंपैरिजन में कितना सर्विस प्रोवाइडर्स पार्टिसिपेट करेंगे, 3, माने इट मींस 3 सेलर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। और जिसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को चेक करना है, उसका जो टेक्निकलिटी जो है, ओके, उसका जो मॉनेटरी जो इट मींस प्राइस को चेक करना है, जिसका लिस्ट होगा उसी से ही प्रोक्योर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पुश बटन प्रोक्योरमेंट है, पुश बटन प्रोक्योरमेंट का एग्जांपल भी मैं आगे में बताऊंगा। पुश बटन का फॉर अमाउंट अप टू ₹5 लाख allows a buyer to select a predefined product and place an order with just a few clicks, as the price discovery, seller selection and compliance checks are system driven। तो यहां पर एक अमाउंट को याद रखिए, उसके ऊपर मेरा एग्जांपल है सब्सिक्वेंट टाइम में। इसी वीडियो में मैं एग्जांपल में कैसे आप पुश बटन प्रोक्योरमेंट करोगे, इट मींस थ्रू दिस मेथड हाउ कैन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज, उसको मैं बताऊंगा। मगर यहां पर लिमिट है पुश बटन प्रोक्योरमेंट में अप टू ₹5 लाख। और जो बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन आएगा, RA मींस रिवर्स ऑक्शन टूल,
और बीड और रिवर्स ऑक्शन, इसमें मोर देन 10 लाख मैंडेटरी है, क्योंकि अप टू 10 लाख जो है L1 है, जो कंपैरिजन है 3 सर्विस प्रोवाइडर्स को, एटलीस्ट 3 सर्विस प्रोवाइडर्स को आप कंपेयर करोगे और जिसका लिस्ट होगा उसी से खरीदोगे। उनका स्पेसिफिकेशन को चेक करना है, क्वालिटी को चेक करना है और जिसका प्राइस लिस्ट होगा उससे खरीदना है। ग्रेटर देन 10 लाख मींस मैंडेटरी है, आपको बिडिंग जाना है, नहीं तो रिवर्स ऑक्शन में जाना है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन पूछते हो क्या यदि लेस देन 10 लाख होगा, क्या हम ऑनलाइन बिडिंग नहीं कर सकते? क्या हम रिवर्स ऑक्शन को नहीं जा सकते? जा सकते हो, मगर इसमें याद रखना है ग्रेटर देन 10 लाख मींस मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, आपको बिडिंग करना है और रिवर्स ऑक्शन में जाना है। क्योंकि डायरेक्ट परचेज तो अप टू 50,000 है, आप कोई भी सेलर से खरीद सकते हो, और जो अप टू 10 लाख है वो तो कंपैरिजन में आ गया L1 में, है कि नहीं? बाकी ग्रेटर देन 10 लाख मींस आपको बिडिंग करना है कि रिवर्स ऑक्शन में जाना है, ठीक है? ये मैंडेटरी है, मगर लेस देन 10 लाख आप बिडिंग कर सकते हो, रिवर्स ऑक्शन में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ग्रेटर देन 10 लाख मींस मैंडेटरी है, ठीक है? और नेक्स्ट वन है एक प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, यू नो, बेसिकली एक सिंगल सेलर जो एक्चुअली जो कमोडिटी आप खरीदना चाहते हो, जो जेम प्लेटफॉर्म में एक सिंगल जो ओरिजिनल इक्विपमेंट, ये इनका बात सोचिए ना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ये तो सिंगल होते हैं, पर्टिकुलर कमोडिटी का ओरिजिनल इक्विपमेंट ये सिंगल होते हैं, ठीक है? तो इसी से ही आपको खरीदना है, क्योंकि जिस स्पेसिफिकेशन का कमोडिटी आप प्रोक्योर करना चाहते हो ओनली यही दे सकता है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो इस केस में आपको प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट देना है। तो स्पेशल प्रोक्योरमेंट मोड दैट अलाउज परचेज ऑफ प्रोप्राइटरी और सिंगल सोर्स आइटम्स, गुड्स और सर्विसेज दैट आर अवेलेबल फ्रॉम ओनली वन मैन्युफैक्चरर और ऑथराइज सोर्स, क्योंकि ऑथराइज सोर्स एक ही है। आपको जो स्पेसिफिकेशन, जो कमोडिटी का फीचर जो चाहते हो ओनली यही दे सकता है, एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, पर्टिकुलरली वहां से ही आपको खरीदना है, और ओनली एक है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो इस केस में यदि ओनली वन सर्विस प्रोवाइडर है और उसी से ही आपको खरीदना है, तो तब आपको क्या करना है? प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। अच्छा, अभी एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। मैं फर्स्ट बताया था जो पुश बटन प्रोक्योरमेंट है अप टू 5 लाख तक है, ठीक है, ये पुश बटन प्रोक्योरमेंट मैं आपको बताया था अप टू 5 लाख, है ना? अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है पुश बटन प्रोक्योरमेंट? सपोज यहां पर एक एग्जांपल में दे दिया, इमेजिन यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट ए गवर्नमेंट कॉलेज, यू नीड टू बाय 5 लैपटॉप्स फॉर द न्यू कंप्यूटर लैब एंड द टोटल कॉस्ट इज 4,50,000, ठीक है? सपोज आप एक गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, आपको 5 लैपटॉप्स एक्चुअली खरीदना है न्यू कंप्यूटर लैब के लिए, और आपके पास जो अमाउंट है वो 4,50,000 है, टोटल कॉस्ट इज ₹4,50,000। सो फर्स्ट वन, डिफाइन द प्रोडक्ट मीन्स उसका जो स्पेसिफिकेशन, यू सिलेक्ट ए प्री डिफाइंड लैपटॉप मॉडल। प्री डिफाइंड क्या है? आपको चाहिए इंटेल i5 16 GB रैम और 512 GB SSD, ये एक्चुअली स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप आपको चाहिए, इसी लैपटॉप मॉडल आपको चाहिए। तो फर्स्ट सिलेक्ट कीजिए प्री डिफाइंड लैपटॉप मॉडल, आपको जिसका स्पेसिफिकेशन यही होगा, इंटेल i5 होगा, 16 GB रैम होगा और 512 GB SSD होगा, ठीक है, क्लियर? द सिस्टम क्या करेगा यहां पर? द जेम पोर्टल इंस्टेंटली लुक्स एट ऑल सेलर्स ऑफरिंग दैट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो कॉन्फ़िगरेशन, जो इंटेल i5 है, 16 GB रैम है, 512 GB SSD है, तो इमीडिएटली जेम पोर्टल क्या करेगा? इसी स्पेसिफिकेशन को देख के, ओके, कौन सा सेलर्स इसको ऑफर कर सकते हैं, वहां पर जाएगा। सो नेक्स्ट, इट आइडेंटिफाइज द वन विद द बेस्ट प्राइस एंड हाईएस्ट सर्विस रेटिंग। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ओनली प्रोडक्ट को प्री डिफाइन करना है कि मुझे ये स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट चाहिए, ओके, इंटेल i5 होना चाहिए, 16 GB रैम होना चाहिए, 512 GB SSD होना चाहिए। तो अब आपका काम खत्म हो गया, आप तो प्री डिफाइन कर दिया। तो अभी जेम पोर्टल क्या करेगा? सर्च करेगा कि हु आर द सेलर्स, दे कैन प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ लैपटॉप। तो फिर जेम पोर्टल डिटेक्ट करेगा एक सर्विस प्रोवाइडर जिसका बेस्ट प्राइस है, प्राइस बहुत रीजनेबल है,
और उसका रेटिंग भी अच्छा है। देखिए, इट आइडेंटिफाइज द वन with the best price and the highest service rating. Then the push, you see the final recommendation. Automatically आपको जेम पोर्टल रिकमेंड करेगा कि प्लेस ऑर्डर, क्योंकि आपका जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कि जितना सेलर्स थे, ये जो सेलर है उसका हाईएस्ट सर्विस रेटिंग है और प्राइस भी रीजनेबल है, तो रिकमेंड किया जाता है उसको आप ऑर्डर करो। तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको बोलेगा। ठीक है, क्लियर? तो इसीलिए इसको कहा जाता है जो पुश बटन प्रोक्योरमेंट। ठीक है, देन द रिजल्ट, द ऑर्डर इज इंस्टेंटली सेंड टू द सेलर। तो ऑर्डर चला जाएगा जब आप प्लेस ऑर्डर करेंगे। द सिस्टम हैज ऑलरेडी सर्टिफाइड दैट दिस इज द बेस्ट डील फॉर द टैक्स पेयर। ठीक है, तो ये जो रिक्वायरमेंट, इसमें थोड़ा फीचर्स को देख लीजिए। जैसे प्राइस लिमिट अप टू ₹5 लाख पर ऑर्डर, आप जानते हो कि पुश बटन ये जो प्रोक्योरमेंट है अप टू ₹5 लाख। प्रोडक्ट टाइप मस्ट बी प्री डिफाइंड, आपको स्पेसिफिकेशंस प्री डिफाइन करना है। जैसे यहां पर इंटेल i5 था, 16 GB था, 512 GB SSD था, तो कैटलॉग प्रोडक्ट आप ये प्री डिफाइन कर दिए थे। तो आप सेलर को चूज नहीं करेंगे, सिस्टम, जो जेम पोर्टल का सिस्टम ही उसको कौन करेगा, एल्गोरिथम, उसका जो सिस्टम ही चूज करेगा बेस्ट वन, जिसका रेटिंग अच्छा है। एक सेलर को जेम पोर्टल चूज करेगा कि जो आपको स्पेसिफिकेशन, जो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बेस्ट है, क्योंकि उसका प्राइस बहुत रीजनेबल है इन कंपैरिजन टू अदर सेलर्स, और उसका रेटिंग भी अच्छा है, तो वो आपको रिकमेंड करेगा कि यही सेलर बेस्ट है, तो आप ऑर्डर प्लेस करो। ठीक है, तो स्पीड, डिजाइन फॉर अर्जेंट और रूटीन रिक्वायरमेंट्स। तो यहां पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन किया वो कैसे पुश बटन रिक्वायरमेंट होता है। तो यहां पर जो भी चूज करेगा, जो पर्टिकुलर सेलर को सिस्टम ही चूज करेगा, और जिसका हाईएस्ट रेटिंग जिसको मिला है और जो रीजनेबल प्राइस में देगा, और आपका स्पेसिफिकेशंस को पूरा वेरी स्ट्रिक्टली आपका स्पेसिफिकेशंस को वो स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट को वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हम बिडिंग में चलेंगे। सेकेंड, ये भी एक बढ़िया प्रोक्योरमेंट है। मैं बताया था कि ग्रेटर देन जब 10 लाख होगा तब मैंडेटरी है, इधर बिडिंग में जाओ, नहीं तो रिवर्स ऑक्शन टूल में, आरए में जाओ, रिवर्स ऑक्शन टूल में जाओ। तो फर्स्ट बिडिंग को डिस्कस करेंगे। सपोज यहां पर ग्रेटर देन 10 लाख तो मैंडेटरी है, लेस देन 10 लाख बिडिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वैसे हमारा जो कंपैरिजन होता है एटलीस्ट 3 सर्विस प्रोवाइडर को हम कंपेयर करते हैं L1 में, मगर आपको बोलेंगे हम बिडिंग में जाएंगे, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर ग्रेटर देन 10 लाख मींस आपको बिडिंग करना है। अच्छा, यहां पर देखिए बायर, सपोज यहां पर दे दिया बिडिंग में एक एग्जांपल, 20 लैपटॉप्स आपको प्रोक्योर करना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 20 लैपटॉप्स प्रोक्योर करना है। ये बायर जो है गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। रिक्वायरमेंट जो है आपका स्पेसिफिकेशन, हाई एंड लैपटॉप्स फॉर डाटा एनालिसिस, i7 प्रोसेसर, 32 GB रैम, 1 TB टेराबाइट SSD, ये आपका रिक्वायरमेंट है, ये आपका स्पेसिफिकेशन है कि मुझे i7 प्रोसेसर चाहिए, 32 GB रैम और 1 TB SSD, और एस्टिमेटेड कॉस्ट सपोज 18 लाख है। आप ये जो लैपटॉप 20 लैपटॉप्स को खरीदेंगे, जो हाई एंड लैपटॉप्स, तो आपके पास जो ये जो गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो बोल रहा है उसके पास एस्टिमेटेड कॉस्ट 18 लाख है, और उसको इसी रिक्वायरमेंट का लैपटॉप चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, फेज 1 में फर्स्ट बीड क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, द बायर डज नॉट पिक ए सेलर, इंस्टेड दे पब्लिश देयर रिक्वायरमेंट टू द एंटायर मार्केट। तो क्रिएटिंग बीड मीन्स यहां पर आपको जो स्पेसिफिकेशंस आपको चाहिए, तो यहां पर आप सेलर आप पिक नहीं करेंगे, आप पब्लिश करेंगे। जेम पोर्टल में इसको पब्लिश किया जाएगा कि मुझे ये स्पेसिफिकेशंस का लैपटॉप चाहिए। नेक्स्ट वन, द बाय टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, द बायर सिलेक्ट्स लैपटॉप्स फ्रॉम द जेम कैटलॉग एंड टिक्स द स्पेसिफिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बता रहा है। ठीक है, तो बायर यहां पर आप कंडीशन ऐड करोगे। क्या कंडीशन है कि वो जो सेलर होना चाहिए वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑथराइजेशन होना चाहिए। ठीक है, और वो सेलर का जो सर्विस सेंटर होगा वो सेम स्टेट में होगा। सपोज आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप दे दिए। ठीक है,
हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो यहां पर फर्स्ट आपको बीड क्रिएट करना है। तो जेम पोर्टल में बीड क्रिएट में आपका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप देना है कि मुझे ये चाहिए, i7 प्रोसेसर चाहिए, 32 GB रैम का लैपटॉप चाहिए और 1 TB SSD का लैपटॉप चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया, जो भी सेलर होगा वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और उसका सर्विस सेंटर वही सेम स्टेट में होना चाहिए। और यहां पर कोई रिवर्स ऑक्शन नहीं होगा, जो रिवर्स ऑक्शन का टगल है उसको आप ऑफ कर दो। तो यहां पर जब आप बीडिंग में जाएंगे आपको ऑप्शन बायर को देना है, ठीक है, कि मुझे किस तरीके का स्पेसिफिकेशन का कमोडिटी चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेलर्स का एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑथराइजेशन होना चाहिए और उसका सर्विस सेंटर वही सेम स्टेट में होना चाहिए जिस स्टेट में हमारा गवर्नमेंट ऑफिस है। ओके, और जो आरए रिवर्स ऑक्शन जो टगल है उसको आप ऑफ कर दीजिए, ठीक है। फिर अभी आ जाएगा, देखिए फेज 2 में अभी सेलर्स आ गए टेक्निकल एंड फाइनेंशियल के लिए, सेलर्स लाइक डेल कंपनी आ गया, HP और लोकल ऑथराइज पार्टनर्स। तो सी द नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन देखेंगे जेम पोर्टल में और सबमिट करेंगे 2 एनवलप्स, 2 एनवलप्स, एक में टेक्निकल एक एनवलप रहेगा और एक सेकेंड वन जो मॉनेटरी बीड का रहेगा। तो फर्स्ट वन एनवलप 1 में टेक्निकल रहेगा। दे अपलोड ब्रोक्योर्स एंड सर्टिफिकेट्स प्रोवाइडिंग देयर लैपटॉप मैचेस द, तो वो अपलोड करेंगे उनका। ओके क्लियर। तो सेकेंड में सेलर्स नोटिफिकेशन देखेंगे जेम पोर्टल में, अभी वो अपलोड करेंगे 2 एनवलप्स में उनका टेक्निकल बीड और अनदर एनवलप में फाइनेंशियल बीड, वो उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन एनवलप 2 में आ गया फाइनेंशियल, दे एंटर देयर फाइनल प्राइस। सेलर ए बोल रहा है 88,000 पर यूनिट, सेलर बी बोल रहा है 92,000 पर यूनिट, सेलर सी बोल रहा है 85,000 उनका प्राइस। ओके, जो सेकेंड एनवलप रहेगा वो फाइनेंशियल बीड रहेगा। अच्छा, अभी फेज 3 इवैल्यूएशन एंड अवार्ड। फर्स्ट टेक्निकल ओपनिंग, फर्स्ट टेक्निकल जो बीड एनवलप है उसको ओपन किया जाएगा। टेक्निकल बीड में i7 प्रोसेसर होना चाहिए, 32 GB रैम, 1 TB 1 TB SSD होना चाहिए, है कि नहीं। द सिस्टम ओपन्स एनवलप फर्स्ट एनवलप में क्या था, टेक्निकल बीड था। सपोज सेलर सी, यहां पर जो मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में सेलर सी दे रहा है 16 GB रैम दे रहा है, तो ये तो नहीं है स्पेसिफिकेशन में, क्योंकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में वो क्या दिया था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कि मुझे 32 GB रैम चाहिए। ओके, तो ये तो सेलर सी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसका टेक्निकल बीड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि जो मिनिमम फीचर है वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा जो इमेजिनरी एग्जांपल में 2 सेलर्स रह गए। ओके, ओनली उनका टेक्निकल बीड को एक्सेप्ट किया गया क्योंकि वो जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस था वो एलिजिबल है वो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। अच्छा, अभी उनका सेकेंड एनवलप जो फाइनेंशियल बीड है ओपन किया जाएगा। ओपन करने से सेलर ए दे रहा है 88,000 डिमांड किया है। ओके, और इसमें आप देख लीजिए सेलर ए दे रहा है यहां पर 88,000 और सेलर बी, क्योंकि सेलर सी तो यहां पर जो सेलर सी है, यहां पर जो कंपनी सी है वो तो रिजेक्ट हो गया, उसका टेक्निकल बीड को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि वो 16 GB रैम दे रहा है, मगर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको 32 GB रैम चाहिए। तो अभी यदि हम ए बी को कंपेयर करेंगे, 88,000 है लेस है, तो इसको ही क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, क्योंकि यहां पर तो रिवर्स ऑक्शन नहीं है, तो जिसका L1 होगा उसी को ही अवार्ड दे दिया जाएगा। तो 20 लैपटॉप्स आप देखिए 17.6 लाख आ जाएगा क्यों, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट था, 18 लाख था। अभी क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो ऐसे बिडिंग सिस्टम, तो यहां पर क्या है, जो बायर है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्चुअली थ्रू बिडिंग एक्चुअली प्रोक्योर करना चाहता है तो उसका वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को अपलोड करेगा और उसका एलिजिबिलिटी जो सेलर्स एक्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे उनका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, और बाकी इनवाइट किया जाएगा बीड्स को। तो जब नोटिफिकेशन देखेंगे सेलर्स, वो दोनों बीड, एक बीड में उनका टेक्निकल बीड, सेकेंड एनवलप में फाइनेंशियल बीड, वो ऐसे अपलोड करेंगे, ठीक है। फिर अभी एवेल्युएशन होगा, फर्स्ट टेक्निकल बीड को ओपन किया जाएगा और चेक किया जाएगा। यहां पर एनवलप मींस एक्चुअली एनवलप नहीं है,
दोनों अलग अलग में अपलोड करना है, टेक्निकल बिड को, फाइनेंशियल बिड को। फर्स्ट टेक्निकल बिड को ओपन करके कंपेयर किया जाएगा कि कौन कौन क्वालिफाई कर रहे हैं, टेक्निकल बिड में कौन कौन क्वालिफाई कर रहे हैं। तो यहां पर देखा गया कि एक मेरा जो इमेजिनरी एग्जांपल में सेलर सी 16 GB रैम है, तो वो तो डिस्क्वालीफाई होगा क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 32 GB चाहिए। बाकी दो सेलर्स रह गए तो वो क्वालिफाई कर गए टेक्निकल बिड में, उनका फाइनेंशियल बिड को चेक किया जाएगा, पर लैपटॉप वो कितना डिमांड किए हैं। तो उसमें देखा गया सेलर ए एंड बी दोनों क्वालिफाई किए और सेलर ए का प्राइस कम है, तो उसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अवार्ड दे दिया जाएगा। और जो इमेजिनरी एग्जांपल में 20 लैपटॉप्स पर लैपटॉप 88,000 ओके प्राइस होगा और उसके हिसाब से 17.6 लाख एक्चुअली पेड करेगा डिपार्टमेंट टू द सेलर। ठीक है, ये बिडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट वन एक रिवर्स ऑक्शन टूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स ऑक्शन टूल, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। जो आरए टूल है, एग्जांपल सपोज बाइंग 500 ऑफिस चेयर्स। ओके, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो 500 ऑफिस चेयर को परचेज करना चाहता है। यहां पर बायर देखिए, ये लार्ज गवर्नमेंट पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एस्टिमेटेड वैल्यू 15 लाख है। ये जो 500 ऑफिस चेयर्स वो खरीदेगा उसके लिए उसका एस्टिमेटेड वैल्यू है 15 लाख है। अच्छा, आरए रूल 2026 यहां पर एक कंडीशन बायर दे दिया। सब सभी समय कंडीशन नहीं रहेगा, मगर यहां पर एक बायर एक कंडीशन दे दिया मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में। द बायर ऑफन सेट से 50% रूल where only the top 50% of technically qualified bidders starting from the lowest price are invited for the reverse auction। यहां पर एक बायर ने क्या किया, ये जो लार्ज गवर्नमेंट पीएसयू है वो एक ऑप्शन दे दिया। क्या दिया कि हम लोअर प्राइस से देखेंगे और वो टेक्निकली क्वालिफाई है, ओनली हम 50% बिडर्स को रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करेंगे लोअर प्राइस से, सबको अलाउ नहीं करेंगे। सभी टेक्निकली क्वालिफाई करते हैं। ओके, उनका टेक्निकल बिड को चेक करेंगे, सब क्वालिफाई कर रहे हैं, मगर हम 50% को लेंगे। कैसे? लोअर प्राइस से 50% को लेके उनको हम इनवाइट करेंगे रिवर्स ऑक्शन के लिए। ये रूल है। ओके, ये मेरा जो इमेजिनरी एग्जांपल में रूल है। अच्छा, नेक्स्ट वन यू सी स्टार्टिंग पॉइंट, द बायर फर्स्ट ओपन से स्टैंडर्ड बिड, सो 6 सेलर्स पास द टेक्निकल। सपोज टेक्निकल राउंड, जो टेक्निकल बिड को इवैल्यूएट किया जाएगा, टेक्निकल बिड में बेसिकली स्पेसिफिकेशंस। ओके, क्या क्या चेयर में क्या क्या होना चाहिए फीचर। ओके, वही है टेक्निकल चेयर जो हम खरीदेंगे, चेयर में क्या क्या स्पेसिफिक क्या क्या फीचर होना चाहिए, यही है। सपोज 6 सेलर्स एक्चुअली टेक्निकल राउंड को क्वालिफाई कर गए। ओके, फिर उनका प्राइसेस को देखेंगे हम, यदि टेक्निकली वो क्वालिफाई कर गए उनका फाइनेंशियल बिड को देखा जाएगा। सेलर ए बोल रहा है पर चेयर 3000, सेलर बी बोल रहा है 3100, सेलर सी बोल रहा है 3200। तो उसमें आप देखिए, और जो मैं बोला था यहां पर एक कंडीशन था कि 50% एक्चुअली टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स हम जो लेंगे फ्रॉम लोअर प्राइस से हम लेंगे 50%। तो यहां पर ये जो डीईएफ सेलर्स, ये भी टेक्निकली क्वालिफाई किए थे मगर उनका प्राइस हाई हो गया, तो 50% मीन्स हम तो 3 लेंगे, क्योंकि कितना सेलर मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में क्वालिफाई कर रहे हैं, टेक्निकल बिड में क्वालिफाई कर रहे हैं 6 है, मगर जो डीईएफ सेलर्स है उनका प्राइस ज्यादा है, तो हम लेंगे लोअर प्राइस से हम 50% सेलर्स को इनवाइट करेंगे रिवर्स ऑक्शन के लिए। तो यहां पर डीईएफ उनका प्राइस हायर है तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अभी रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे ए, बी एंड सी तीनों। ठीक है, चलो इसमें क्या होगा, जो रिवर्स ऑक्शन में ये जो तीनों सेलर्स पार्टिसिपेट करेंगे, एक रियल टाइम होगा। जैसे रियल टाइम बिगिन होगा 2 PM में और लास्ट फॉर 2 आवर्स, माने 2 PM टू 4 PM यही रियल टाइम रहेगा। 2 PM टू 4 PM यही रियल टाइम रहेगा। अभी ये 3 सेलर्स पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी अल्टीमेटली प्राइस को बीट करेगा उसको अवार्ड मिलेगा। अभी ये तीनों के बीच में कंपटीशन होगा और रियल टाइम दे दिया गया 2 PM टू 4 PM। ठीक है, इसी टाइम के अंदर वो भी उनका प्राइस को कम करेंगे, जिसका पूरा लिस्ट प्राइस होगा उसको अवार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है नहीं? तो अभी लाइव हो गया, अभी स्टार्ट हो गया ये 2 आवर्स का। तो उसमें क्या है, 2:15 PM में देखा गया सेलर बी
2950 कर दिया, कि मैं इतने में देना चाहता हूं। 245 में यहां पर सेलर ए क्या किया, 2900 कर दिया, ठीक है, और 50 रुपीज कम कर दिया। फिर 3:55 PM में जो लास्ट मिनट में सेलर सी उसको 2850 कर दिया। मगर इसमें एक रूल है कि जो टाइमिंग, जैसे मेरा इमेजिनरी एग्जांपल 2 PM टू 4 PM है, यदि 15 मिनट्स जस्ट बिफोर एक्चुअली क्लोजिंग द रियल टाइम यदि कोई बीड करता है लास्ट मोमेंट में, वो फिर अनदर 15 मिनट्स एक्चुअली ऑटो एक्सटेंशन हो जाएगा। जैसे 3:45 टू 4 के अंदर यदि कोई सेलर प्राइस को कम कर दिया, फिर ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तक देखेगा और लास्ट मोमेंट में प्राइस को कम करके अवार्ड ले जाएगा, ऐसे नहीं होगा। यहां पर एक रूल है। रूल क्या है, जैसे रियल टाइम है 2 PM टू 4 PM, तो 4 PM मीन्स इसी के अंदर 3:45 PM टू 4 PM, इसी के अंदर यदि कोई प्राइस कम कर देता है ओके अवार्ड लेने के लिए, तो फिर 15 मिनट्स एक्सटेंड हो जाएगा, 4 to 4:15 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जानबूझकर वेट करके कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर देखिए 3:55 PM में सेलर सी कम कर दिया 2850, तो वो वही 15 मिनट्स का टाइम के अंदर आ जाता है। मेरा जो मैं बताया जस्ट 15 मिनट्स बिफोर, जो टाइमिंग रियल टाइम 2 PM टू 4 PM है, तो 3:45 टू 4 PM के अंदर यदि कोई सेलर प्राइस को कम करता है, फिर अनदर ऑटोमेटिकली 15 मिनट्स एक्सटेंशन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मिनट में जानबूझकर बुक किया है अवार्ड लेने के लिए। तो नेक्स्ट आप देखिए, ऑटो एक्सटेंशन में बताया था जिसको हम स्नाइपिंग बोलते हैं, और वेटिंग अंटिल द लास्ट सेकेंड टू बीड, वो जानबूझकर वेट करेंगे, लास्ट मिनट में बीड करेंगे इसको। तो जेम हाजान ऑटो एक्सटेंशन रूल, जेम का एक ऑटो एक्सटेंशन रूल है। यहां पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इफ ए बीड इज प्लेस्ड विद इन द लास्ट 15 मिनट्स, यदि कोई बीड करेगा विद इन द लास्ट 15 मिनट्स, ताले ऑटोमेटिकली वो फिर अनदर 15 मिनट्स एक्सटेंड हो जाएगा। दिस कंटिन्यूज अंटिल नो मोर लोअर बीड्स आर प्लेस्ड। तो आप यहां पर देखिए, यदि कोई बीड प्लेस किया विद इन लास्ट 15 मिनट्स, फिर ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करेगा ना, 15 मिनट्स ऑटो एक्सटेंड कर देगा टाइम को। तो यहां पर तो हमारा था टाइम था 2 to 4 PM, मगर सेलर सी क्या किया, यहां पर सेलर सी जानबूझकर 3:55 PM में वो बीड कर दिया, प्राइस कम कर दिया, तो ये तो वही 15 मिनट्स के अंदर आ जाता है ना, जो 3:45 टू 4 के अंदर, तो ऑटोमेटिकली 4 to 4:15 एक्सटेंड हो जाएगा इस केस में, है कि नहीं। तो ऑटोमेटिकली 4 to 4:15 हो जाएगा और ऑटोमेटिकली अवार्ड लास्ट में दे दिया जाएगा, जिसका कम होगा उसी को अवार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये एक्चुअली दिया है कि जो हमारा जो रिवर्स ऑक्शन है, ओके, तो लास्ट मिनट में होगा तो ऑटोमेटिकली ऑटो एक्सटेंशन होगा, ऐसे ऐसे करके जिसका लास्ट में आएगा प्राइस कम होगा वही होगा। तो इसमें रिवर्स ऑक्शन में क्या है, जैसे रिवर्स ऑक्शन में मैं बताया कि जैसे ये तीनों है, ये तीनों एक्चुअली क्वालिफाई किए, ये तीनों के बीच में वो रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और यहां पर प्राइस कम होता जाएगा, एक रियल टाइम दे दिया जाएगा। जैसे मेरा एग्जांपल में इतना है, इसी के अंदर वो फिर जो कम प्राइस चार्ज करेगा, ठीक है, इन तीनों के बीच में कंपटीशन होगा, वो ये प्राइस के इस प्राइस को फिर कम करेंगे। मगर इसको याद रखना है कि जो लास्ट 15 मिनट्स में यदि कोई बीड करता है, फिर ऑटोमेटिकली 15 मिनट्स एक्सटेंशन होगा, ये अल्टीमेटली ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो मगर और एक टाइम आएगा जिसमें सपोज जैसे मेरा एग्जांपल में, यहां पर मेरा एग्जांपल में लास्ट मिनट में हो गया, यहां पर देखिए लास्ट मिनट में, तो यहां पर फिर एक्सटेंड हो जाएगा 4 to 4:15 हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसे चलेगा। मगर उसी के अंदर सपोज कोई बीड नहीं किया इसी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली किसको चला जाएगा, सेल सी को अवार्ड दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि लास्ट जो रियल टाइम है विद लास्ट 15 मिनट्स के अंदर यदि कोई बीड प्लेस करता है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करेगा, अनदर 15 मिनट्स ऑटो एक्सटेंशन कर देगा। जैसे मेरा एग्जांपल में 2 to 4 रियल टाइम था, 4 to 4:15 हो गया, मगर उसी के अंदर और कोई बीड प्लेस नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली किसको चला जाएगा, सेलर सी को,
ठीक है कि नहीं? तो सपोज मेरा एग्जांपल में ये बोल दिया कि फिर 410 में सपोज बी बोल दिया कि मेरा प्राइस है 2800, तो ये फिर 410 ये 15 मिनट्स के अंदर कर दिया, मीन्स अनदर 15 मिनट फिर एक्सटेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली 415 टू 430। यदि इसी के अंदर कोई बीड प्लेस नहीं किया तो ऑटोमेटिकली किसको चला जाएगा, अवार्ड किसको मिल जाएगा, बी को। क्लियर? 2800 में। तो इस तरीके से एक्चुअली रिवर्स ऑक्शन होता है। तो क्लियर? जब आपका फाइनेंशियल बीड ओपन होगा, ओके, उनके बीच में जो जिनका लोअर है, सपोज ये क्वालिफाई कर लिए, टेक्निकल 6 सेलर्स है मगर कंडीशन को क्वालिफाई किए, 6 सेलर्स एक्चुअली टेक्निकली क्वालिफाइड है, मगर हम लोअर नीचे जो प्राइस है वहां से 50% हल लेंगे, 50% मीन सेल एबीसी क्वालिफाई किए, उन वो रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक रियल टाइम, जैसे मेरा एग्जांपल, ये इसी रियल टाइम में उनके बीच में फाइट चलेगा, मगर लास्ट 15 मिनट्स के अंदर यदि बीड प्लेस होगा फिर अनदर 15 मिनट्स एक्सटेंड हो जाएगा। ऐसे करके जिसका अल्टीमेटली लिस्ट प्राइस होगा उसको ही अवार्ड मिलेगा। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट वन, एक फॉरवर्ड ऑक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। फॉरवर्ड ऑक्शन क्या है? यहां पर उल्टा है। फॉरवर्ड ऑक्शन क्या है? गवर्नमेंट उसका जो ओल्ड असेट्स है उसको बेचेगा। गवर्नमेंट एक्चुअली ट्राई टू सेल इट्स ओल्ड असेट्स, कुछ ओल्ड व्हीकल्स है जिसको गवर्नमेंट चाहता है कि उसको इट मींस कंडेमनेशन करना है क्योंकि ओल्ड हो चुका है, कोई काम का नहीं है। तो कोई भी गवर्नमेंट जो पुराना असेट्स है उसको सेल करना चाहता है, कि कोई लीज के आकार में कोई सपोज प्लेस है वो लीज के आकार में देना चाहता है, तो ये सब फॉरवर्ड ऑक्शन का बात आएगा। अब देख लीजिए अक्टूबर 2000, ये डेट को, इन अक्टूबर 2021 फॉरवर्ड ऑक्शन वाज लॉन्च्ड ऑन द जेम पोर्टल टू ऑफर ई ऑक्शन सर्विसेज टू गवर्नमेंट। यहां पर ई ऑक्शन सर्विसेज गवर्नमेंट को दिया गया अक्टूबर 2021 में। यूज्ड बाय जेम रजिस्टर्ड बायर्स टू सेल गवर्नमेंट असेट्स ऑन द जेम प्लेटफॉर्म। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसका जो असेट्स है वो सेल करेगा जेम प्लेटफॉर्म में। ये उल्टा है। गवर्नमेंट क्या है, जो आज बायर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रजिस्टर्ड किया गया है जेम पोर्टल में। जेम एसपीबी ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आज ए सेलर, इट मींस यूज्ड बाय जेम रजिस्टर्ड बायर्स टू सेल, ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तो बायर के हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो यूज्ड बाय जेम रजिस्टर्ड बायर्स टू सेल गवर्नमेंट। तो अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हमारा गवर्नमेंट असेट्स को हम, जो ओल्ड असेट्स को हम सेल करेंगे। सो इट अलाउज पोटेंशियल बीडर्स टू बीड एंड परचेज मटेरियल्स। यहां पर उल्टा है। यहां पर क्या है, गवर्नमेंट के पास कुछ स्क्रैप मटेरियल्स है, ओल्ड व्हीकल्स है, कि कोई ओल्ड मशीन से, ओके, गवर्नमेंट उसको बेचना चाहता है, उसको सेल करना चाहता है जेम पोर्टल में। तो ऐसे भी तो हम ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस एक्चुअली दे आर द रजिस्टर्ड बायर्स ना जेम पोर्टल। तो उनके पास भी राइट है कि वो कोई भी उनका ओल्ड असेट्स को थ्रू जेम पोर्टल वो सेल कर सकते हैं। यही है फॉरवर्ड ऑक्शन। उसमें आप और थोड़ा देख लीजिए। फॉरवर्ड ऑक्शन में, फॉरवर्ड ऑक्शन इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू सेल इट्स ओन असेट्स टू द हाईएस्ट बिडर। तो यहां पर सिंगल सेलर है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंगल सेलर है, बहुत बायर्स रहेंगे, क्योंकि कोई गवर्नमेंट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो सेल करना चाहता है उसका असेट्स को। यहां पर सिंगल सेलर मोर बायर्स, तो प्राइस बढ़ता जाएगा। मगर रिवर्स ऑक्शन में उल्टा था। रिवर्स ऑक्शन में क्या था, एक बायर था, मोर सेलर्स थे। रिवर्स ऑक्शन में एक बायर मोर सेलर्स, तो वो प्राइस कम होगा। मगर यहां पर क्या है, एक सेलर है, लार्ज बायर से, है कि नहीं? एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसका ओल्ड असेट्स को वो सेल करना चाहता है, तो एक ही सेलर है लार्ज बायर से। ठीक है, देखिए क्या क्या इसमें फॉरवर्ड बिडिंग में, स्क्रैप डिस्पोजल, सेलिंग ओल्ड आयरन, कॉपर और ब्रोकन मशीनरी, ये सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेल करना चाहता है। लीजिंग राइट्स, कोई सपोज कैंटीन, जैसे ऑक्शनिंग द राइट टू रन ए कैंटीन इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक कैंटीन को रन करना है, वो लीज के आकार में गवर्नमेंट दे देगा। और कोई पार्किंग लॉट एट स्टेडियम, स्टेडियम में जो पार्किंग है उसको लीज के आकार में सपोज गवर्नमेंट देना चाहता है। ठीक है, कि कोई एक स्टेडियम है उसमें एडवर्टाइजमेंट, वो स्टेडियम ओनर गवर्नमेंट है और उसमें एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो भी लीजिंग राइट दे सकता है गवर्नमेंट। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सेलिंग
फॉलन टिम्बर और स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ई वेस्ट है, कोई ओल्ड कंप्यूटर्स आर सोल्ड टू द सर्टिफाइड रिसाइकलर्स एट द बेस्ट प्राइस, कि कंडेम्ड एंड एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, तो ये सब आ जाता है फॉरवर्ड ऑक्शन में। गवर्नमेंट चाहता है इसी तरीके का चीज को जेम पोर्टल में सेल करेगा। अभी क्लियर स्टूडेंट नॉट? तो उसमें लीज, ये भी बहुत लीज राइट्स भी आता है। गवर्नमेंट बोलता है कि सपोज मेरा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन को लीज के आकार में कोई ले सकता है, इसी में वो क्या करेगा, इट मींस जेम पोर्टल में वो इट मींस बिडिंग इनवाइट करेगा, वही फॉरवर्ड ऑक्शन इनवाइट करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए न्यूमरिक एग्जांपल दिया है, सेल ऑफ 10 रिटायर्ड मेल वैन्स। जो पोस्टल डिपार्टमेंट का मेल वैन्स है वो चाहता है 10 रिटायर्ड मेल वैन्स। वो देखता है कि मेल वैन्स बहुत पुराना हो चुका है और काम का नहीं रहेगा, तो उसको वो स्क्रैप के आकार में उसको सेल करना चाहता है पोस्टल डिपार्टमेंट। द सेटअप बाय द ऑक्शनर, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिटरमाइंस दैट दीज वैन्स आर बियॉन्ड देयर सर्विस लाइफ। ओके, item lot of 10 forced traveler mail vans condemned। ओके, 10 मेल वैन को वो सेलिंग करना चाहता है, रिजर्व प्राइस वो 12 लाख रखा, इससे कम नहीं होगा। ये जो 12 वैन्स को वो बेचेगा उससे कम नहीं होगा 12 लाख से, द मिनिमम द गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट। ठीक है, मेरा एग्जांपल में क्लियर। अभी ओपनिंग बीड स्टार्ट हुआ, ओपनिंग बीड 10 लाख आ रहा है, बिडिंग स्टार्ट हियर। ओके, बिडिंग स्टार्ट हियर 10 लाख आया, इनिशियल ऑक्शन एंड टाइम 2 PM। और जो ये जो ऑक्शन का, ये जो फॉरवर्ड ऑक्शन का एंड टाइम एक रियल टाइम होता है 2 PM है। सपोज यहां पर दे दिया जैसे 12 नून टू 2 PM, सपोज मेरा एग्जांपल में यही है रियल टाइम। तो जब इनिशियल बीड ओपन हुआ 10 लाख आ गया, मगर हमारा रिजर्व गवर्नमेंट का पोस्टल डिपार्टमेंट का रिजर्व है 12 लाख, इससे कम नहीं होगा। ओके, इतना उसको मिलना चाहिए। तो फर्स्ट 10 लाख आया, तो इनिशियल ऑक्शन एंड टाइम 2 PM है, जैसा मेरा एग्जांपल 12 नून टू 2 PM, ऑक्शन एंड हो जाएगा 2 PM में। अब देखेंगे आगे में, देखिए यहां पर देखिए जो स्क्रैप डीलर से इनिशियल बिडिंग में स्क्रैप डीलर से वही तो खरीदेंगे, तो वो स्क्रैप, उनके पास स्क्रैप लाइसेंस होना चाहिए और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो भी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होगा वो करेंगे। ठीक है, तो उनके पास स्क्रैप लाइसेंस होगा और EMD पेड भी करेंगे, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी वो करेंगे। ये टेक्निक कंडीशन है। ओके, 3 स्क्रैप डीलर्स A, B and C have passed the technical, एक्चुअली टेक्निकल एलिजिबिलिटी, वहां पर टेक्निकल एलिजिबिलिटी देखा जाएगा कि ये 3 पास हो गए, A, B and C। ओके, टेक्निकल ये में पास हो गए, क्योंकि टेक्निकलिटी में था कि उनके पास स्क्रैप लाइसेंस होना चाहिए और वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी जो अमाउंट है पेड करेंगे, जो सिक्योरिटी बोलते हैं, जो बीड सिक्योरिटी बोलते हैं। तो देखिए अभी 1 PM बीडर ए बोला मैं 10 लाख में लेना चाहता हूं, जो 10 मेल वैन से। 1:15 में बीडर बी बोल रहा है मैं 10,50,000। 1:45 PM में बीडर सी बोल रहा है 11 लाख, ये 10 लाख 11 लाख। ठीक है, ये 2 PM तक चलेगा। अच्छा, ऑटो एक्सटेंशन केस में क्या होगा, द ऑटो एक्सटेंशन फेज भी है, स्नाइपिंग प्रोटेक्शन। 1:50 PM बीडर बी बोल रहा है मैं 11,50,000 दे दूंगा, मगर ये 10 मिनट्स में वही है जो स्नाइपिंग प्रोटेक्शन है, जैसे मैं यहां पर बताया 12 to 2 PM। यदि 15 मिनट्स बिफोर, ओके, कोई विद इन, सपोज यहां पर दे दिया सिंस दिस इज विद इन 15, जस्ट 15 मिनट्स बिफोर, सपोज इसी के अंदर मेरा एग्जांपल में 1:45, इसी के अंदर कोई भी बीड प्लेस करेगा फिर एक्सटेंड हो जाएगा 15 मिनट्स, फिर हो जाएगा 2 to 2:15 हो जाएगा, ऐसे चलेगा जैसे मैं रिवर्स ऑक्शन में बोला था। ठीक है, तो अभी क्या है, बीडर बी कब बीड प्लेस किया 1:50 में, वो तो इसी रेंज में आ जाता है, विद इन 15 मिनट्स आ जाता है, तो फिर एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, ऑटो एक्सटेंशन हो जाएगा 2 to 2:15, ऐसे चलेगा। तो फिर 2:10 में देखा गया कि यहां पर देखिए 1:50 तो हो गया, फिर एक्सटेंड हो गया 2:15 तक, क्योंकि मैं जो टाइम बताया जैसे 12 to 2 PM, जस्ट 15 मिनट्स बिफोर, माने इट मींस विद इन 15 मिनट्स बिफोर 2 PM, विद इन 15 मिनट्स बिफोर 2 PM। यदि कोई बीड प्लेस करता है ऑटोमेटिकली 15 मिनट्स अगेन
एक्सटेंड हो जाएगा, फॉरवर्ड ऑप्शन जो है अगेन 15 मिनट्स ऑटो एक्सटेंशन हो जाएगा, ओके, जेम पोर्टल में। तो 210 में देखा गया कि बीडर ए बोल रहा है मैं 12,10,000, ये तो रिजर्व प्राइस से ज्यादा हुआ क्योंकि रिजर्व प्राइस 12 लाख था, गवर्नमेंट बोल रहा था कि 12 लाख मिनिमम, उससे कम नहीं होगा, ये तो क्रॉस हुआ एटलीस्ट, मगर 210 कर दिया, अगेन 15 मिनट्स के अंदर आता है तो फिर चला जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा 2:15 to 2:30 PM चला जाएगा, ठीक है, मगर रिजर्व प्राइस तो अभी मिल गया 12 लाख। अच्छा, ऐसे एक्सटेंड होता जाएगा। फिर बीडर सी बोल रहा है 228 में 12,50,000, तो फिर विद इन 15 मिनट्स बिफोर 2:30 मीन्स फिर एक्सटेंड होगा 2:30 to 2:45, फिर एक्सटेंड होगा, ओके, सो फिर एक्सटेंड होगा, इसमें 12,50,000 आ गया, बीडर सी बोल रहा है, तो टोटल एक्सटेंशन हो गया 45 एडिशनल मिनट्स। आपको देखना है कि जो रियल टाइम है विद इन 15 मिनट्स बिफोर कंप्लीशन टाइम, विद इन 15 मिनट्स बिफोर कंप्लीशन टाइम यदि बीड प्लेस होगा फिर ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको 15 मिनट्स एक्सटेंड कर देगा, और उसमें देखो फाइनल प्राइस आ गया 12,50,000, ये हाईएस्ट है। तो इसमें फॉरवर्ड ऑप्शन में क्या है, एक ही सेलर है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक ही सेलर है, मोर बायर्स एक्चुअली उनके बीच में बिडिंग हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ता जाएगा रियल टाइम में, ठीक है, ये फॉरवर्ड ऑप्शन है। जस्ट रिवर्स ऑप्शन का जस्ट ऑपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो मेरा ये जो पार्ट था इतना था, प्रोक्योरमेंट जेएमएसपी भी उसका की प्रिंसिपल्स था, क्या जेम पोर्टल का पिलर्स के ऊपर बताया, और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बताया, और जेएमएसपी के ऊपर बताया, जो ओन बेसिकली मैनेज एंड मेंटेन द जेम पोर्टल, देन मैनेज सर्विस प्रोवाइडर जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है उसके ऊपर बताया, कि नेक्स्ट वन बताया प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है पीएमयू, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो कंसल्टेंसी फार्म है वो मॉनिटर करते हैं सिस्टम को, जेम पोर्टल सिस्टम को, कि वो स्मूथली फंक्शन कर रहा है कि नहीं। तो ये डिटेल्स मेन है प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के में बताया, बिडिंग की इट मीन्स पुश बटन और रिवर्स ऑक्शन टूल, फॉरवर्ड ऑक्शन, और फॉरवर्ड ऑक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर जब गवर्नमेंट सेल करेगा उसका ओल्ड असेट्स को, कि गवर्नमेंट कोई भी चीज को लीज के आकार में देगा, वो सब आ जाता है फॉरवर्ड ऑक्शन में, क्योंकि गवर्नमेंट एक सेलर है और मोर बायर्स पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें प्राइस बढ़ता जाएगा, मगर रिवर्स ऑक्शन में प्राइस कम होता जाएगा। तो ये डिटेल्स बताया। फिर सेकेंड पार्ट को वेट कीजिए, उसमें आपको फिर जो मैं इसमें डिस्कस नहीं किया वो पार्ट को पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज इतना ही है, थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।